Chapter 5, Duty and Responsibility of Mine Management Control, Contractor, Manufacturer, Official, Competent Persons and Workers. Okay, regulations number 37. Duties and responsibility of owner. Duty and responsibility of owner. In taking preventive and protective measure, the owner shall arrange for regular assessment of risks and dealing with it. Regular assessment of risks and dealing with it in the following order of priority. पहला eliminate the risks, दूसरा control the risks at source, तीसरा minimize the risks that include the design of safe work systems, and last one is in so far as risks remain provided the useful protective equipment having regard to what is reasonable, practicable and feasible and good practice, and the exercise of due diligence. Second point, owner shall take all necessary measures to eliminate or minimize the risks to safety and health of persons employed in the mines under their control, and shall ensure that mine design, construct and provided with electrical, mechanical and other equipment including communications systems to provide conditions for safe operation and a healthy working environment, ensure that machine is commenced, operate and maintain and commenced in such a way that worker can perform the work assigned to them without endangering their safety and health, or that persons take a step to maintain this stability of ground in which persons have access in the context of their work, where practicable provide from every underground workplace to exit, each of which is connected to separate means of egress to the surface. Separate means of access to the surface. ओनर एजेंट और उस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ही होगी कि दो एंट्रेंस या फिर एग्जिट माइंस में, ओके, इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन फॉर ऑल अंडरग्राउंड वर्किंग टू विच एक्सेस इज परमिटेड. Ensure monitoring, assessment and regular inspections of the working environment to identify the various hazards to which the workers may be exposed and assess their level exposure. In respect of zone susceptible to particular hazard, draw up a implement operating plan and procedure to ensure safe system work and protections of work. Take measure and precautions appropriate of nature of mine operations to prevent, detect and combat the start and spread of fire explosions and inundations. Ensure that there is serious danger to safety and health of workers. Operations are stopped and workers are evacuated to safe locations. Ensure that corrective actions taken immediately when manager or other official report non-compliance with the safety and health regulations or code of practice by any persons. The owner shall be ensure preparations of emergency response plan specific to each mine for reasonably foreseeable industrial and natural disaster. और the owner ensure the preparations of emergency plan. कौन ensure करेगा? Owner. Where workers are exposed to physical, chemical or biological hazard, the owner shall inform to the workers. Okay.
incomprehensible manner of hazard associated with their work, health risks involved, and relevant preventive and protective measures. Take appropriate measure to eliminate or minimize the risks resulting from exposure to those hazards, where adequate protections against risks of accident or injury health, including exposure to adverse conditions, it not possible to be ensured by the other means provided, maintain to the cost to the worker suitable protective equipment, cloth as necessaries and other facility defined by these regulations. मतलब कह रहा है where adequate protections against risks of the accident or injury to health, including exposures of adverse conditions, is not possible to ensured by the other means provided and maintained at no cost of worker suitable protective equipment, clothing necessaries and अगर ऐसा कहीं रिक्सी वाला काम हो रहा है जहाँ पे एडिक्वेट प्रोटेक्शंस लेना ज़रूरी है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कर को पीपीई किट देगा या उससे रिलेटेड जो भी समथिंग बन पाता है वो ओनर प्रोवाइड करवाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. Provided worker who have suffered from any injury or illness at workplace with first aid and appropriate transportations from the workplace and the access to appropriate medical facility. अगर कोई ड्यूटी के दरमियान कोई इंजरी हो गया या बीमार है तो उसके लिए फर्स्ट एड का इंतज़ाम करेगा, appropriate transportations का भी इंतज़ाम करेगा from the workplace and access to the appropriate medical facilities. Okay. The owner shall ensure that adequate training and retraining program and comprehensible instructions are provided for worker at no cost of them on safety and health matter as well as on the work assigned. Okay, training देगा, adequate supervision and control provided each shift to secure the safe operations of the supervision and control प्रत्येक शिफ्ट में करेगा. ए सिस्टम इज एस्टेब्लिश सो द नेम ऑफ द ऑल पर्सन्स हु एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड कैन बी एक्यूरेटली नाउ दे एट एनी टाइम एज वेल their probable locations. A system is established so that name of all persons who are employed below ground will be accurately known at any time. और सारे स्टाफ या वर्कर जो बिलो ग्राउंड में काम कर रहे हैं उनके नाम सारे लोकेशंस में होनी चाहिए. Now at any time as well as their probable locations. Okay. All accident and dangerous occurrence are investigated and appropriate remedial actions are taken. इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. द रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नोटिस specified by the under regulations 8 is made regional inspector and chief inspector on the accident dangerous occurrence. Reporting of information and notice as per regulations 8. regulations 8 क्या था? regulations 9 notified is regulations 8. डेंजरस, हाँ, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस का जो भी इंफॉर्मेशन और नोटिस है और एक्सीडेंट से जो भी रिलेटेड है वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी ओनर की ही कि इन्फॉर्म करे और नोटिस भेजे रीजनल इंस्पेक्टर को और चीफ इंस्पेक्टर को. द ओनर शॉल बी इंश्योर रेगुलर हेल्थ सर्विलियंस ऑफ वर्कर एक्सपोर्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड स्पेसिफिक टू माइनिंग ऑपरेशंस. ओनर की इंश्योरिटी रहेगी हेल्थ और सर्विलेंस ऑफ वर्कर. ओके. नेक्स्ट रेगुलेशन 38 जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर. सप्लायर मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर regulations number 38. A persons who design, manufacture, import, provide or transfer machineries, equipment or substance for use in coal mines shall. A person who design, manufacture, import, provide or transfer machineries, equipment
or substance for use in coal mines shall ensure that machineries, equipment, or substance do not entail dangers for the safety health of those using them correctly. Okay. Second, make available informations concerning their requirement for the correct installations, maintenance, and use of machineries and equipment, and the correct storage use of substance. Information concerning the hazard of machineries and equipment, the dangerous property of hazard substance and physical agent product, and informations on how to eliminate or control risks arising from the identified hazard associated with the product. इतना आपकी मशीनरीज में या समथिंग जो भी है वो होनी चाहिए. इन्फॉर्म टू हाउ एलिमेंट कंट्रोल रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द आइडेंटिफाई हैजार्ड एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट. किसी भी हजार्ड और कोई रिस्क आती है तो उस मशीन से रिलेटेड उस मशीन को कैसे बचाव करेंगे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? सप्लायर, मैन्युफैक्चरर और डिज़ाइनर को. कि अगर आपका मशीन समथिंग किसी डेंजरस हजार्ड में फंसा हुआ है या समथिंग कुछ एक्सीडेंट प्लेसेस में है तो वहाँ से आप मशीन्स को कैसे निकालें, ये सारा इंस्ट्रक्शंस पहले ही दे दिया जाएगा. और देने वाला कौन रहेगा? मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और डिजाइनर. ओके. अच्छा, जैसे सेफ्टी फीचर्स होता है ना ट्रक, टिपर्स, डंपर, ये सब में कि अगर समथिंग कहीं कुछ होता है तो सेफ्टी फीचर्स को लेके उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि अगर आग लगी है तो ये स्विच दबाइए, अगर स्टीयरिंग समथिंग कुछ प्रॉब्लम है तो ये स्विच दबाइए, इमरजेंसी की कंडीशंस में ये स्विच दबाइए, इमरजेंसी विंडो या गेट ओपन करना तो ये समथिंग. इस तरह के जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पहले ही सप्लायर, मैन्युफैक्चरर और डिज़ाइनर बता ही देते हैं. और नहीं तो फिर एक बुकलेट देते हैं, उस बुकलेट में सारे सेफ्टीज और समथिंग लिखे हुए रहते हैं. जैसा आप अगर बाइक या गाड़ी समथिंग लेते हैं तो आपको भी बुकलेट मिलता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर 39. A contractor deployed in a mine for any work shall establish effective ongoing communications and coordinate between appropriate level of supervisor, official and senior official to the mine prior to commencing work, which shall be include provision identify hazard and measure to eliminate and control the risk. Contractor का ये सब responsibility है. ओके. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छा कम्युनिकेशंस और कोऑर्डिनेट रखें अपने सुपरवाइजर, ऑफिशियल या स्टाफ, सीनियर ऑफिशियल के बीच में. और विच सॉल्व इंक्लूड प्रोविजन ऑफ आइडेंटिफाई हैजार्ड, द मेजर ऑफ एलिमिनेट एंड कंट्रोल द रिस्क. इंश्योर अरेंजमेंट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क रिलेटेड इंजुरी एंड डिजीज, इल हेल्थ एंड इंसिडेंट among to the work while performing work in the mine. अगर माइन मतलब ड्यूटी के पीरियड में अगर समथिंग कुछ ऐसा इंजुरी या डिजीज होती है तो आप रिपोर्टिंग वर्क भी करेंगे. ओके. प्रोवाइडेड रिलिवेंट वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ हैजार्ड अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग टू देयर वर्कर प्रायर टू कमेंसिंग एंड वर्क प्रोग्रेस नेसेसरीज. ट्रेनिंग और सेफ्टी से रिलेटेड समथिंग आपको अवेयरनेस क्लासेस या फिर अवेयरनेस ट्रेनिंग देना है. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर को जाएगी. आउटसोर्सिंग वाली बात हो रही है. इंश्योर कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म देयर अंडर. इंश्योर भी करना है जितने भी कंप्लायंस है, जितने भी डाटा है, जितने भी सटीक बातें लिखी गई है रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट में, ये सब भी आपको मतलब फ्रेम्ड अंडर करना है, मतलब सारी को फॉलो करना है, बताना है समथिंग.
रेगुलेशंस नंबर 39 ही पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर मतलब आउटसोर्सिंग के बारे में। व्हेन डिप्लॉइंग कॉन्ट्रैक्टर द ओनर एजेंट एंड मैनेजर सोल इंश्योर दैट, आउटसोर्सिंग ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टर का छोटा छोटा काम भी कॉन्ट्रैक्टर लेके अपना कर सकते। When deploying contractor, the owner, agent, or manager shall be ensured that the same safety and training requirement apply to the contractor there the workers as to the workers of establishment. Where required, only such contractors are deployed that had been duly registered on the whole license and the contractor specifies safety and health requirement as well as sanctions and penalties in case of non-compliance, and such contractors shall be including the right for the mine official to stop the work whenever is a risk in serious injury is apparent and suspended operations until the necessary remedies has been put in place. सेफ्टी और जितने भी आपके वर्कर या स्टाफ या जो भी है उनको सेफ्टी और ट्रेनिंग भी देना है, प्लस वैसे एक्सपीरियंस वाले बंदे को वो काम देना है जिसके पास लाइसेंस हो। और कॉन्ट्रैक्टर अगर किसी भी हेल्थ या समथिंग कुछ नॉन कंप्लायंस करता है यानी कि गैर कानूनी काम करता है तो पेनल्टी भी लगाएंगे, साथ में ब्लैक लिस्ट भी कर देंगे। रेगुलेशंस नंबर 40 ड्यूटीज ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ए माइन। ड्यूटी ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय इन ए माइन, ड्यूटी ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय इन ए माइन, जो भी एम्प्लॉय है माइन से रिलेटेड ड्यूटीज आपको जो करनी है। Every person shall be strictly adhere to provision of the act and of rules regulations made thereunder and to any other or directions issued by the manager or officially with view the safety of conveyance or persons not be inconsistent with act rules and these regulations not shall be he neglect to refuse obey the orders or directions. Okay, every person shall be strictly adhere to provision of the act of these rules and regulations made thereunder or any other order to directions issued by the manager. Okay, manager. No person shall be interfere with the impeded or obstruct any persons in the discharge of his duties. No shall be offer of render any service or use any threat to any other persons with view preventing him from complying with the provision of the act and the rules and regulations made under the perform his duties faithfully. हाँ, ये पर्सन ये पॉइंट कह रहा ना कि अगर मैं ऑपरेटर हूँ, एसडीएल ऑपरेटर हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आधा घंटा या 1 घंटा के लिए मेरा जो मशीन से कोई और चलवाए, तो ऐसा कार्य नहीं होगा, ऐसा काम नहीं करेंगे, अदरवाइज ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आपका जो दायित्व, आपका जो वर्क है वही आप करेंगे, किसी अदर बंदे पे आप थोप नहीं सकते हैं। Every person shall immediately before proceed to work and immediately after terminating work at the end of his shift, his name is recorded in the register maintained under the subsections 4 of the section 48 of the act. अगर टर्मिनेटेड है तो आपकी नेम डिटेल्स ये सब सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाएगा ऑफिस में। सेक्शन 48 क्या था बाद में देखेंगे। Provided that in case of working below ground, the person shall be get name recorded every time his proceed below ground or return to the surface। हाँ, क्या कह रहा है कि अगर आप बिलो ग्राउंड में जा रहे हैं और जैसे वैसे तो हाजी बाबू अटेंडेंस बनाता है और बिलो ग्राउंड जाने से पहले, और जब बिलो ग्राउंड से ऊपर उठता है तो सब एम्प्लॉय आजकल डिजिटल हो गया तो आउट भी करते हैं ना, तो इससे क्या पता चल जाता है कि भाई जितने वर्कर हमारे नीचे वर्क किए हैं सभी सही सलामत ऊपर भी आ चुके हैं। एवरी पर्सन हाँ, अब बात आई यही चीज़।
provided further that electronic punching or registry system as approved by the chief inspector may be provided and used for the purpose of the identification, marketing, attendance and recording. Name of the person shall be heard. Printed copy of such records shall be kept for the purpose of then recorded and deposited, registered and then चीफ इंस्पेक्टर। ओके, ये रेगुलेशंस बनी है कब? 2017 27 नवंबर समथिंग में, ठीक ना। तो 2017 के पीरियड में मतलब जो भी रेगुलेशंस के स्टाफ बनाने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मेंबर्स समथिंग डीजीएमएस या फिर कम्युनिटीज जो भी है, कितने दूरदर्शी थे, कितने दूरदर्शी थे वो दूर का सोचे। 2017 में क्या इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग के बारे में किसी ने सुना था, जाना था? इलेक्ट्रिक थंब से आपकी अटेंडेंस बनेगी? नहीं ना, दूर तक सोचते हैं। जो देश हित में काम होती है ना, वो हमेशा दूर तक सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी देख रहे हो रेलवे लाइंस, ट्रेन, ठीक ना, तो देखना कि ये जो रेलवे लाइंस बिछाई जाती है, तो बिछाने के लिए पहले एरिया सिलेक्ट करते हैं कि इतनी चौड़ाई इतनी लंबी होगी, ठीक ना, और उसी के अकॉर्डिंग पटरियाँ बिछाई जाती है। अभी क्या आप नोटिस करना कि भाई पटरी की समथिंग 4 लाइन है, 1 2 3 4 4 लाइन है, ठीक ना। लेकिन रेलवे ने क्या करा था कि ऑलरेडी 4 लाइन नहीं, ऑलरेडी उन्होंने ऐसा प्लान किया था कि अगर हमको भविष्य में 25 लाइन 20 लाइन भी जरूरत पड़े तो मेरे को मिल जानी चाहिए। इतना एरिया वो भविष्यवाणी करके बैठे थे कि आज नहीं तो कल लाइन की जो ट्रैक वो आज नहीं तो कल बढ़ानी होगी। इसीलिए देखना, अगर कहीं भी रेलवे की वर्क हो रही है तो कहीं भी 4 लाइन को ही लेके मतलब 4 लाइन को ही लेके उन्होंने कभी एरिया को सिलेक्शंस नहीं किया। जब भी सिलेक्शंस किया है तो भविष्य को देखते हुए 20 लाइन 25 लाइन एरिया को सिलेक्शंस किया है। ऐसा उस समय जब रेलवे लाइन ट्रक मतलब प्रोग्रेस में थी, बिछ रही थी या फिर लाइनिंग बन रही थी, ट्रैक बन रही थी। आदमी क्या सोचते होंगे कि भाई 4 लाइन है, 4 लाइन में अप एंड डाउन होगी, ठीक ना। लेकिन रेलवे क्या सोचता था एज ए जनहित और भविष्य को लेके कि भाई 4 लाइन नहीं, हम लोग 20 लाइन भी आगे भविष्य में बनाएंगे। इसलिए जो भी एरिया है वो एरिया को ज़्यादा लेके चलें समथिंग। तो आप भी दूरदर्शी होइए, दूरदर्शी तक सोचिए। प्रेजेंट तक सोचेंगे तो फिर समथिंग प्रेजेंट में ही रह जाएंगे, रेडियस एरिया नहीं बढ़ा पाएंगे। तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग के बारे में every person's employed in a mine shall take a reasonable care of his own safety and health, and that other persons who may be affected his act and omission at work, including proper care and use protective clothing, facilities, equipment placed at his disposal। अच्छा, जितने भी माइंस में वर्कर है, पर्सन से एम्प्लॉयड है, वो अपनी स्वास्थ्य को अपने ही मतलब ट्रेनों में लिखती है ना कि किसी प्लेस में कि यात्रीगण अपनी सामान की रक्षा स्वयं करे, सेमिटीज अपनी स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं करे। डिस्पोजल टैब में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हर ओवरमैन को दी जाती है, ताकि अगर कुछ एक्सीडेंट या समथिंग कुछ मैटर हो तो आप फर्स्ट एड ऑन दी डेट प्लेस कर सके, ठीक है। रिपोर्ट फॉरविथ टू एन ऑफिशियल any situations which he believes may pose a risk his safety or health, that other persons which he may not able to properly deal with himself। report forthwith हाँ, अगर कोई भी वर्किंग के दरमियान कोई ऐसा एक्सीडेंटल या समथिंग होता है या होने वाला होता है जिसको आप संतुलन में नहीं ला सकते हैं, तो आप तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे कि सर ऐसा मैटर हो गया है, हमसे कंट्रोल में नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ देख लीजिए।
Okay, cooperate with employee to permit compliance with duties and responsibility place of हाँ, आपको ये भी दायित्व है एवरी एम्प्लॉय ऑफ द पर्सन्स की आप एक दूसरे के बीच में प्रेम भाव का संबंध रखें, कोऑपरेट करें और वर्क को प्रोग्रेस में लाइए. ओके, no person shall accept the authority of official, revoke or pass thoroughly any fence, barrier or gate, remove pass of the dangerous signal. कोई भी बंदा किसी भी पास मीन्स किसी भी बैरियर, गेट या फेंसिंग को हटाएंगे नहीं जब तक कि ऑफिशियली का आदेश ना आए. प्लस हटाने वाले भी ऑफिशियल ही रहेंगे, ठीक ना, सिर्फ उन्हीं को ही अथॉरिटी है. ओके, सब्जेक्ट टू एनी डायरेक्शंस दैट may be given by official, no person shall be except for some justifiable purpose. So justifiable purpose go into any part of the mine other than that parts of his work or travel from his working place by any roadways other than the proper traveling roadways. Subject to any direction that may be given by official, no person shall be except for some justifiable purpose गो इनटू एनी पार्ट ऑफ द मन. हाँ, ये कह रहा है ना कि आपकी जो ड्यूटीज या फिर जैसा डायरेक्शंस मिला है उसी रास्ते पे आप चले, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करें. एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अपने से ना करें. एक्स्ट्रा एक्टिविटीज मतलब इधर उधर घूमे नहीं माइंस के अंदर में, इंटायर अंडरग्राउंड कंडीशंस में. ओके, जैसा डायरेक्शंस मिला है वर्किंग प्लेस का वैसे डायरेक्शंस कीजिए. ऐसा नहीं कि हम पिलर नंबर 38 को काटने के लिए बोला गया है और हम जाके काट रहे हैं पिलर नंबर 39 को, ठीक है. और ऐसा भी नहीं कि पिलर नंबर 38 के लिए हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी गई और हम जा रहे दूसरे फेज में काम देखने के लिए. एक बात और कि कोई सोए नहीं. नेक्स्ट पॉइंट यही है, नो पर्सन शॉल बी स्लीप व्हाइल ऑन ड्यूटी. नो पर्सन शॉल बी स्लीप व्हाइल इन ड्यूटी. ये प्रत्येक, वैसे तो ड्यूटी के पीरियड कभी सोना ही नहीं चाहिए, बट अंडरग्राउंड के केस में आप कभी भी ना सोइए. बहुत डेंजरस हो सकता है. अगर कोई भी जहरीली गैस आपके नाक में आ गई, आप सोए हुए हैं तो सोते ही रह जाएंगे, ठीक है. तो अंडरग्राउंड के केस में आपको कभी स्लीप नहीं करना है. सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड दिस रेगुलेशंस एंड ऑर्डर मेड देयर अंडर, नो पर्सन शॉल बी रिमेन्ड in a mine beyond the period of her which his shift in extended. हाँ, आपकी ड्यूटीज समाप्त हो गई है. अगर 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे में आप वर्क कंप्लीट कर चुके हैं तो आप जल्दी निकल जाइए. आपको यहाँ एक्स्ट्रा घंटे देने की ज़रूरत नहीं. वैसे तो सब 8 ही घंटे चाहते हैं कि जल्दी 8 घंटा हो और हम बाहर निकले, लेकिन ये साफ साफ यहाँ लिखा गया है कि 8 घंटा से आप अपनी ड्यूटी जितनी भी है उतना कंप्लीट करके आप निकलिए, रुकना नहीं है. ओके, रेगुलेशंस नंबर 41, ड्यूटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन्स. ड्यूटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन्स. ओके, every competent person shall be subject to orders or superior official shall not. Every competent person shall be subject to order of superior official. हर competent person अपने superior की orders को follow करेगा. And shall not depute another persons to perform his work without the sections of his superior official. हाँ, अपनी ड्यूटीज को किसी और से नहीं करवाएगा जब तक कि ऑफिशियल की आदेश ना हो विथ रिटर्न में. Absent himself without having previously obtained permission from the such official for the terms of his absence or without having been relevant of the duly competent persons. Absence कोई नहीं कर सकते हैं. करिए, आप इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि आपकी जो वर्क है वो किसी और को सौंपा जाए. अगर हमारे शिफ्ट में 2 ऑपरेटर है और 2 मशीन्स चल रही है, ठीक है, अगर इन द केस एक बंदा अब्सेंस कर दिया बिना बताए तो फिर एक मशीन हमारा तो चलेगा नहीं, प्रोडक्शन ठप हो जाएगा. तो उस केस में अगर आप हमें पहले ही इन्फॉर्म कर देते तो उस केस में हम किसी अदर शिफ्ट के या कहीं
किसी को 8 से एक्स्ट्रा और डबल ड्यूटीज करवा के हम उस मशीन को चला सके, इसलिए छुट्टी लेने से पहले आपको इन्फॉर्म करना है। अब रेगुलेशंस नंबर 42, ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल। Every official shall be carry out duties assigned to him by the manager or assistant manager according with the provision act of these regulations. ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल मीन्स जो भी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर आपको ड्यूटीज दिया गया है उसी को आप फॉलो करेंगे। एवरी ऑफिशियल शॉल बी टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर सी पर्सन अंडर हिज चार्ज अंडर द कैरिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव ड्यूटीज एंड प्रॉपर्ली। आपके पास पावर दी गई है, बेस्ट पावर दी गई है। पावर मतलब दिस डेट करने के लिए नहीं, एज ए ड्यूटीज और वर्किंग और प्रोडक्शन बढ़िया। रेगुलेशन नंबर 43, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर इन एवरी माइंस डेली पर्सनल सुपरविजन शॉल बी एक्सरसाइज बाय द मैनेजर। मैनेजर की ड्यूटीज रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज, बाकी सब में ड्यूटीज थी, अब यहाँ देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ द मैनेजर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्वयं सुपरविजन करें माइंस को, और कब करना है ये भी नीचे बात लिखी गई है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड ही शॉल बी विजिट एंड एग्जामिन द वर्क ऑन एटलीस्ट 4 days in every week, ensure the safety of every respect। हाँ, अगर आप बिलो ग्राउंड के लिए मैनेजर हैं तो आपको प्रत्येक हफ्ता में 4 दिन सुपरविजन करना है, ठीक है। और प्रत्येक हफ्ता में उस 4 दिन में एक दिन कैसा हो, एक दिन नाइट में भी करना है। आगे पॉइंट है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एटलीस्ट 1 विजिट इन एवरी फोरनाइट शॉल बी मेड ड्यूरिंग दी नाइट शिफ्ट। हाँ, और नाइट शिफ्ट चल रही है तो आपको एटलीस्ट एक विजिट करना है नाइट में, 1 विजिट एवरी नाइट। नहीं, एक मिनट, प्रत्येक हफ्ता में आपको 4 दिन तो विजिट करना ही है, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड फर्दर दैट एटलीस्ट 1 विजिट इन एवरी फोरनाइट शॉल बी ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट। फोर्थ नाइट यानी कि प्रत्येक 4 दिन में नाइट शिफ्ट आती है, तो प्रत्येक 4 दिन में आपको एक बार विजिट करना है नाइट वाली में, प्रत्येक 4 दिन में। अगर सपोज हफ्ता 7 दिन की होती है तो 2 दिन तो आपको करना ही करना है विजिट नाइट शिफ्ट में, ओके। प्रोवाइडेड also that where owing to any unaffordable cause he is unable to carry out enforceable duty of inspection, he shall be recorded reason for the same बॉन्ड बुक, मतलब बीपी बुक में, बॉन्ड पेज बुक में आपको मेंटेन करना है अगर किसी भी समथिंग और इंस्पेक्शन से और, ओके। The manager shall maintain in a bond page book kept for the purpose of diary and shall be recorded the result of each of his inspections and also actions taken his rectify the defect or defect notice if any। मैनेजर अपना बॉन्ड पेज बुक मेंटेन करेगा, एक डायरी मेंटेन करेगा और उसमें रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा कि क्या इंस्पेक्शंस किए हैं और उसके रिगार्डिंग आप क्या स्टेप लिए और क्या सॉल्यूशंस निकाले। द मैनेजर शॉल मेक अरेंजमेंट फॉर ऑल ओवर मैन एंड अदर ऑफिशियल टू मीट हिम असिस्टेंट मैनेजर once every working day for the purpose of complying with the no matter concerned with their duties। The manager shall make arrangement for all overmen and officially to meet him or assistant manager once in every working day purpose complying with them matters connected with their duties। जितने भी ऑफिशियली है, सुपरवाइजर है, ओवरमैन है, सरदार है, ये सब जितने भी ऑफिशियली है मैनेजर से प्रत्येक हर बार मिले, ठीक है। मिले मीन्स क्या, पार्टी उटी नहीं करना है भाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज के रिगार्डिंग मिले, बात रखें, ठीक है। और जो असिस्टेंट मैनेजर है वो हर दिन मिलेंगे अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, ठीक है। यही है ना, द मैनेजर शॉल बी मेक अरेंजमेंट और ओवरमैन ऑफिशियली टू मीट हिम
और असिस्टेंट वंस इन एवरी वर्किंग डे। हमेशा एवरी वर्किंग डे में मैनेजर की ऐसी अरेंजमेंट करके रखना होगा कि आपसे मिले आदमी ऑफिशियली। और द मैनेजर शॉल बी इंश्योर sufficient supply proper of material and appliance for the safety for the mines, and the persons employed therein is not the owner agent or the mines shall be reported in written owner agent when anything required of the operational purpose that with the scope of the his authority order copy of the very such recorded in the bond page book। मैनेजर की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी सेफ्टी पर्पस के रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट या समथिंग मटेरियल चाहिए, जैसे सपोर्ट के लेके कोक सपोर्ट, स्टील चौक, ये सब चाहिए, तो वो मैनेजर ही प्रोवाइड करेगा। अगर मैनेजर के पास नहीं है तो मैनेजर क्या करेंगे, मैनेजर अपने ओनर या फिर एजेंट को रिटर्न में समथिंग करेंगे। ओके, विद इन 30 डेज में हो जानी चाहिए मटेरियल। जो भी मटेरियल नहीं है वो विद इन 30 डेज में मटेरियल आ जानी चाहिए। अब समझिए कैसे लाए। The on receipt of a requisitions under sub regulations for the owner agent shall promptly arrange to supply supply the said materials and appliances, and shall within 3 days of receipt of the requisition intimated to the manager to retain actions take to the missed requisitions। जो भी requisitions आएंगे ओनर और एजेंट की विदिन 3 डेज में मांग पत्र में मैनेजर भेजेंगे। मैनेजर क्या करेंगे कि एक मांग पत्र लिखेंगे कि ये मशीनरीज या समथिंग नहीं है हमारे पास, आप प्रोवाइड कीजिए। तो विद इन 3 डेज में मैनेजर को कर लेना होता है। ओके, और विद इन 30 डेज में ओनर एजेंट आपको दे भी देंगे। द मैनेजर shall assign to every competent person the particular duties, take a possible step to ensure every such person's understanding the carries out of provision contained act and regulations देर अंडर इन प्रॉपर मैनर। मैनेजर ही डिसाइड करेंगे कि इसको क्या वर्क देना है और जिनको वर्क देना है वो सही से रूल्स रेगुलेशंस ये सब। ओके, द मैनेजर शॉल बी प्रोवाइड एवरी ओवरमैन विद ए ट्रेसिंग अप टू डेट ऑफ लास्ट सर्वे शोइंग द वर्किंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिलो ग्राउंड असाइन्ड टू हिम एंड सच ट्रेसिंग वेयर एनी वर्क रिडक्शंस एक्सट्रैक्शंस ऑफ पिलर इज बीइंग कैरिड आउट सो द क्लियरली रेफरेंस टू द परमिशंस ऑफ मैनेजर व्हिच क्या कह रहा है ना, ट्रेसिंग मीन्स एक आपको ट्रेसिंग प्लान मिलता है ओवरमैन को, जो कि मैनेजर ही ड्यूटी रहती है, मैनेजर ही प्रोवाइड करता है ट्रेसिंग प्लान डुरेटेबल क्लॉथ में, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है, पिलर का एक्सट्रैक्शंस और पिलर सारे चीज बना हुआ रहता है, जिसमें आप अगर काम करें जो पिलर आपको एक्सट्रैक्शंस करना है वो अप टू डेट करके मैनेजर को फिर रिटर्न भी करना है, दिखाना भी है, ठीक है। Then after provided that in case of open cast mines tracing shall be saw in the sections of the working under the his charge। okay, open cast की conditions में tracing also saw in the sections of working under his charge। The manager shall be examine all reports and registered and other recorded required be made or kept pursuant of provision act of the regulations or order made thereunder shall be countersign of the manager। सब रिकॉर्ड और रजिस्टर को मेंटेन करेंगे और अपनी काउंटरसाइन भी देंगे। प्रोवाइडेड दैट मैनेजर में भी ऑर्डर इन रिटर्न delegate this duty to assistant manager except the case of their specific provision requiring the manager countersign of the report of okay। The manager shall be give attention to ये लोग फिर से पढ़ लेते हैं। The provided that the manager may by order in return to delegate his duty assistant manager except in the case of very specific provision। okay, the manager shall be give attention to and cause of carefully investigated any specific representations of complaint that may be
him written by an employees to of mine any matter affecting of the safety health persons in our manager shall be give attention to cause to be carefully investigate any specific representations of complaint that may be him written by the employees of the ठीक है manager ही attention something okay when there occurs in a mines any accident resulting serious body injury loss of life and life to any persons or any dangerous occurrence as specified under the clause B sub regulations 1 sub regulations 8 manager shall be soon possible inspect the site of the accident dangerous occurrence as the case may be and shall be either himself through the assistant manager inquiry the the cause and circumstances attending the same and his and the result of every such inquiry along with a plan and sections and wherever practicable a photographer's site accident dangerous occurrence in the details shall be recorded in the bond page book if the purpose and shall be furnished by the chief inspector and regional inspector within 15 days मैनेजर अगर किसी दरमियान एक्सीडेंट होता है किसी की लाइफ जाती है और डेंजरस ऑकरेंस है तो सारे के सारे डाटा कलेक्शन डाटा कलेक्शन मीन्स क्या सुपरविजन जो भी रिपोर्ट है सब मैनेजर तैयार करेगा और चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को सौंपेगा विद इन 15 डेज ऑफ एक्सीडेंट 15 दिन के अंदर में आपको एक्सीडेंट का रिपोर्ट बना के भेजना है मैनेजर को एविडेंस के साथ फोटो वोटो या जो करवाना करवा लीजिए The manager shall be perform such other duties as have been prescribed in that behalf under the Provision Act, the regulations or orders made thereunder. Manager shall be perform such duties behalf of the prescribed on the behalf under the Provision of Act. Okay, the manager may suspend or take such disciplinary actions against any employee to contraventions of any provisions of act and regulations and orders made under that. अगर मैनेजर किसी एम्प्लॉयज को समथिंग जो एक्ट और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है वो करने के लिए कहता है तो मैनेजर अपनी गलती के लिए सस्पेंड हो सकता है ड्यूटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर द ड्यूटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर शॉल बी विजिट सरफेस एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द माइन with regulation number 44 duty of safety officer the duty of safety officer shall to visit surface and underground part of the mine with a view to meet the workers on spot to tell to them on matter safety and investigate such successions thereunder मैनेजर सेफ्टी ऑफिसर के रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज है कि जो भी सरफेस एंड ग्राउंड पार्ट्स है उनको खुद जाके व्यू करे और वर्करों से मिले राय ले बात करे और सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या होना चाहिए ये सब ओके इसके देन आफ्टर टू टेक चार्ज ऑफ न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ एंड सर्व देम अराउंड द माइन पॉइंटिंग आउट द सेफ एंड अनसेफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर वर्क इन द माइन जो नए बंदे रिक्रूटेड है ज्वाइनिंग कर रहे हैं उन्हें सब चीज़ सेफ्टी से रिलेटेड क्लासेस या फिर बताएं ये समथिंग जो भी वर्क पॉइंटिंग है आउट है सेफ है या अनसेफ है ये सब टू इन्वेस्टिगेट ऑल टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट होनी अनहोनी एक्सीडेंट टू इन्वेस्टिगेट ऑल टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट in the mine including minor accident and analyze them the view of pinpoint to natures and common cause of accident investigate करना सेफ्टी ऑफिसर को और वही एनालाइज करे नेचुरल हुई है या फिर आर्टिफिशियल है समथिंग टू मेंटेन डिटेल्स statistics about the mine accident and analyze the same view of the pinpoint natures and common cause of the accident in the mine okay to study and apprise the manager of all possible source of dangers such inundations fire coal dust and other to study the apprises the manager of all possible source of dangers जितने भी डेंजर्स के सोर्स इंडुडेशंस है फिर कोल डस्ट है या फिर समथिंग है वो सारे स्टडी करेंगे एनालाइज करेंगे और
बचाव करेंगे, यही ना सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है, और क्या करेंगे। टू होल्ड सेफ्टी क्लासेस, टू गिव सेफ्टी टैक्स एंड लेक्चर्स टू बी मेंबर्स सुपरवाइजरिंग स्टाफ। सेफ्टी ऑफिसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप एक क्लास अटेंड करेंगे, एक क्लास देंगे सेफ्टी के रिगार्डिंग सुपरवाइजर स्टाफ और ऑफिशियली, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज सेफ्टी वीक एंड अदर सेफ्टी एजुकेशंस एंड प्रोपोगेंडा प्रोग्रामिंग इन द माइंड। आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सर कि सेफ्टी वीक का प्रोग्रामिंग चलवाएं, और जो भी फंड है वो तो आपको मिलेगा ही, और उस प्रोग्रामिंग में ऐसा नुक्कड़ नाटक या समथिंग कुछ करवाएं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सेफ्टी के रिगार्डिंग। To organize, to see that all concerned in mine employed are fully conversant with various standing orders, such those relating the stoppage to mine mechanical ventilation, ventilator and occurrence of the fire, other emergency on the mine's code of practice support plan. To see all concerned mine employees are fully converted various standing order को और SOP को support plan ये सब to provide assistance in the formulations of programming for training at the mine level, including vocational training, training of gas testing, and training in first aid. अभी को असिस्टेंट मतलब अभी को प्रोग्रामिंग ऑफ ट्रेनिंग ये सब देख रेख करना है, और वोकेशनल ट्रेनिंग और ट्रेनिंग इन गैस टेस्टिंग, ट्रेनिंग फर्स्ट एड, ये सब सेफ्टी ऑफिसर का ही दायित्व हो जाएगा। टू रिपोर्ट टू द मैनेजर as a result of his visit the various part of the mine, and as to the provision act as the rule regulations met and their complaint, जो भी कंप्लेंट लिखी गई है, जो भी सेंटेंस रूल्स एक्ट माइंस रेगुलेशन ये सब में वो आप देखें। सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी है, यहाँ लिखी गई है कि आप सब चीज़ देखें और रिपोर्ट भी जमा करें मैनेजर को। ओके, टू प्रमोट सेफ प्रैक्टिस जनरली and lend active support to the measure intend the further cause of safety in the mines and follow up measure complaints recommendation safety committee and workmen inspector to promote safe practice। safe practice means कहने का मतलब है कि सुरक्षा से काम करने के लिए आप प्रमोट करेंगे सभी को, और सुरक्षा के दृष्टि के लिए भी आप एक वर्कमैन इंस्पेक्टर या सेफ्टी कमेटी बनाना, देख रेख करना, ये सेफ्टी ऑफिसर का ही सारा काम होगा। सेफ्टी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, वर्कमैन्स कैसे बनते हैं, ये सब रूल्स में है। तो नेक्स्ट जब चलेंगे तो देखेंगे। अभी बस प्रिपरेशंस के लिए बस रीडिंग कर रहे हैं, देन आफ्टर लिखेंगे, देन आफ्टर फिर से रीडिंग करेंगे, इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्शंस करेंगे और फिर उस डाटा को लिखेंगे, लिखते हुए क्रम में याद भी करते हुए चलना है। उसके बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में क्या होगा, रेगुलेशन के सारे एक पॉइंट को देखेंगे, सारे को पॉइंट से रिलेटेड जो भी एक्ट रूल्स माइंस सब जो भी आते हैं वो भी लेके चलना है, सर्कुलर को भी लेके चलना है। जैसे यहाँ पे वर्कमैन इंस्पेक्टर और सेफ्टी कमेटी के बारे में बात आया ना, तो अभी सेफ्टी कमेटी और वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में डील नहीं कर रहे हैं, लेकिन करेंगे तब जब एक बार इसको पूरी तरह से रीड कर लेंगे रेगुलेशंस को, उसके बाद पूरी तरह से एक बार लिख लेंगे, उसके बाद फिर से जब इसको पढ़ेंगे तब हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो भी है इसमें, जैसे सेफ्टी ऑफिसर और वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, टू असिस्ट द मैनेजर इन एनी अदर मैटर रिलेटिंग द सेफ्टी इन द माइन। ओके, मैनेजर को आप असिस्ट करेंगे कि सर ऐसे ऐसे बात है सेफ्टी से रिलेटेड। द सेफ्टी ऑफिसर should ensure the appropriate emergency plan required under the regulations is put place of the requirement of the same implement। इमरजेंसी प्लान और सेफ्टी ऑफिसर की, ओके, except in emergency no duties other than those specified shall be assigned to the safety officer। except in emergency no duties other than those specified by above shall be assigned to the safety officer। अगर इमरजेंसी के अलावा छोड़ के अगर सेफ्टी ऑफिसर किसी को भी असाइड करते हैं
No duties other than those specified above this will be assigned to the safety officer except in energy. No duties other than those specified, मतलब इमरजेंसी की कंडीशंस के अलावा किसी को भी सेफ्टी ऑफिसर को या समथिंग जो है देख ले. द सेफ्टी ऑफिसर सोल मेंटेन इन ए बोर्न फेसबुक डिटेल्स रिकॉर्ड ऑफ द वर्क परफॉर्म हिज हिम एवरी डे. जो भी आपने ड्यूटी किया, जो भी आप समथिंग किया, वो आपको रिपोर्ट करना है, बॉर्न पेज बुक में लिखना है, मेंटेन करना है सेफ्टी ऑफिसर को. Next duties is 45 regulations, duty and responsibility of assistant manager. इसके बाद वेंटिलेशन ऑफिसर, उसके बाद माइनिंग सर्वेयर या माइनिंग वेंटिलेशन ऑफिसर, उसके बाद सर्वेयर होगा, देन आपका ओवरमैन होगा, ओवरमैन के बाद सर्वेयर है. ओवरमैन सरदार, सर्वेयर से कहाँ है. ओके, सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटीज कंप्लीट हो. असिस्टेंट मैनेजर का काम आज अभी कर लेते हैं, देन आफ्टर वेंटिलेशन ऑफिसर को देखते हैं. ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, रेगुलेशन नंबर 45. द असिस्टेंट मैनेजर शॉल कैरी आउट द ड्यूटीज असाइंड टू हिम by manager and shall be see part of the mine assigned him to the manager. The assistant manager shall carry out the duties assigned to him manager. जो भी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को ड्यूटी देंगे वो असाइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज. ऑल वर्क्स कैरिड आउट द अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन एक्ट एंड, ये तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है कि एक्ट और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है जो भी वर्क है वो किया जाएगा, करेंगे. द असिस्टेंट मैनेजर शॉल बी सब्जेक्ट टू द ऑर्डर मैनेजर विजिट एंड एग्जामिन द वर्किंग अंडर हिज सर्च और पार्ट देयर ऑफ एवरी वर्किंग डेज. आपको प्रत्येक एवरी वर्किंग डे में आपको ऑर्डर्स और मतलब एवरी वर्किंग डे मतलब जितनी भी ड्यूटीज है आपको 6 दिन 7 दिन अगर ड्यूटीज है तो एवरी वर्किंग डे में आपको विजिट करना है, माइंस को एग्जामिन करना है असिस्टेंट मैनेजर. ठीक है. इन एब्सेंस ऑफ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर शॉल बी हैव सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज ऑफ द सेम ड्यूटीज एंड सब्जेक्ट टू सम लायबिलिटी ऑफ द मैनेजर बट नॉट सो एज एक्सटेंड द मैनेजर. देयरफॉर अगर मैनेजर अगर एब्सेंट रहता है तो असिस्टेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी पूरी जितनी की मैनेजर की आती थी, और लाइबिलिटी भी मैनेजर वाली भी आएगी. लाइबिलिटी मतलब किसी भी मैटर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो मैनेजर तो एब्सेंट है, उसके जगह पे असिस्टेंट मैनेजर था, असिस्टेंट मैनेजर को ही सारी चीज लाइबिलिटी जाएगी उस समय. ओके. The assistant manager shall be maintain both bond page book kept for the purpose recorded result each inspections and also actions taken him to rectify the defect or notice if any. हाँ, असिस्टेंट मैनेजर बॉन्ड पेज बुक मेंटेन करेंगे और सारे बात भी रखेंगे, और कोई एक्सीडेंट या समथिंग को डिफेक्ट करते हैं तो वो भी नोटिस. ओके. रेगुलेशंस नंबर 46, ड्यूटी ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर. ये वेंटिलेशन ऑफिसर की रेगुलेशंस काफी पॉइंट है. मेरे को सुबह सुबह इतनी बोलने की या पढ़ने की आदत नहीं. इसमें लगेंगे 1 घंटे और लगेंगे, 1 या 1.5 घंटे और लगेंगे. 46 वेंटिलेशन ऑफिसर को थोड़ा अच्छे से देखना है, इसलिए थोड़ा सा अभी टी ब्रेक लेंगे. टी ब्रेक मतलब ब्रश, सुबह से उठ के ब्रश व्रश करके चाय वाय पी के पढ़ने के लिए बैठा. तो एक बार टी ब्रेक लेने से पहले एक बार फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज के भी रेगुलेशंस किनको क्या है ये हम लोग अभी देख लेते हैं. ओके. अरे वाह, क्या हुआ था अभी.
हाँ 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 हाँ। देखो नीट एंड क्लीन आ रही है ना, यानी कि इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो फेस को ये क्या कर रहा है, ये सॉल्यूशंस कर रहा है। लाइट इधर, एनीवेज, रेगुलेशन नंबर 37, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर। 37 ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर 37, ओके। 38 general responsibility of supplier, manufacturing and designer. General responsibility of supplier, manager and designer. For 38 हो गया। 39 responsibility of contractor। 37 किसका responsibility था? ओनर की है। 38 सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, मैन्युफैक्चरर की। 39 कॉन्ट्रैक्टर का। 40 एम्प्लॉय ऑफ एवरी माइंस, employ of persons, duties of persons employed in mines। 41 duty of competent persons। 41 हमेशा याद रखिए, duty of competent person। 41 duty of official। 42 43 duty of responsibility of manager, ठीक है। 44 मैनेजर के बाद क्या आएंगे? सेफ्टी ऑफिसर, उसके बाद वेंटिलेशन ऑफिसर। तो ड्यूटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर रेगुलेशंस नंबर 44 और 45 ड्यूटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर देन वेंटिलेशन ऑफिसर। फिर से रिपीट कीजिए। 37 किसका था? 37 से 37 ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। 38 मैन्युफैक्चरर की। 39 कॉन्ट्रैक्टर की। 40 ऑफिशियल है ना। 40 competent person, 40 employ in a person employed in mine, सभी की है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज ऑफ पर्सन एम्प्लॉय इन माइन। 41 competent person की। 42 ड्यूटी ऑफ ऑफिशियल, देन आफ्टर 43 मैनेजर, और मैनेजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर, सॉरी ड्यूटी ऑफ ऑफिसर। 44 सेफ्टी ऑफिसर, ड्यूटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर 44, देन आफ्टर असिस्टेंट मैनेजर, और 45 ड्यूटी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, ओके। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। रेगुलेशंस नंबर 37, ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज, देन आफ्टर 38 जाएगा किसको? सप्लायर को, मैन्युफैक्चरर को। फिर 39 जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को। 40 जाएगा एवरीवन, 39 कॉन्ट्रैक्टर को। 40 जाएगा एवरीवन और जो माइंस में एम्प्लॉय है। 41 जाएगा ऑफिशियली कॉम्पिटेंट पर्सन को। 41 कॉम्पिटेंट पर्सन को, और 42 ऑफिशियली की, और 43 मैनेजर को, ओके। तो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेंटिलेशन ऑफिसर को देखेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। लगभग 63 तक ये खत्म होगा। 37 से 63 तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज की चैप्टर है। तो नेक्स्ट रेगुलेशन 46 ड्यूटी एंड ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन ऑफिसर की ड्यूटी करेंगे, तब तक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ओके। ब्रेक के लिए पॉज करते हैं, और टी ब्रेक के बाद फिर से रेगुलेशंस को देखेंगे। अभी 1 घंटे होने को है, ओके।